And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंत का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen spitting to cast a trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा, विजय फॉर्मेशन एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए अपनी। And in command of Group Captain Abhishek Tripathi, along with Flight Lieutenant Sona, here comes the single Rafale flying at 900 kilometers per hour. All set to touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto, Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. Climbing up, carrying out the victory roll, and finally will disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprasham Deeptam. Absolutely. Glory in the sky, touching the sky with glory. Historically, we know fly past have a special affinity with parades and form their aerial component. And today, here, the absolutely captivating fly pasts shown specially for you through our specially placed cameras. And what a glorious day for a glorious fly past. Lovely sunny day, a gorgeous blue sky, the framework, and here we are, having witnessed the grand finale of our 76th Republic Day celebrations. Well, we can see exhilaration and excitement of the parade's elements settling down in a feeling of warm contentment and satisfaction, getting rooted in national pride and sentiment, settling overall present here. Well, it's interesting to note that even though this event is a regular feature every year, each time we watch it, there is a special kind of novelty to these celebrations. And though the parade at Kartavya Path in New Delhi concludes, the celebrations do not end. As Indians, we have so much to celebrate. A solid, inclusive and deeply valued constitution that guides our journey as a republic. An aspirational and young population with limitless potential to economies in India and for those across the world. And of course, a diversity that enriches, challenges, bridges and nourishes. Awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them coming for the national anthem, and then they will escort the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and our chief guest for today, President Prabowo Subianto, President of Indonesia. एक बार से हमारे शास्त्रों में घोड़ों को सूर्य पुत्र माना जाता है। हमारे मान्यता है कि घोड़ों का जन्म समुद्र मंथन से हुआ
और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए घोड़सवार शूरवीर। अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का। आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगों वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky. A beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace. This symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. This year, the release of these balloons also commemorating 75 years of the Indian Constitution. A constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our कि dreams. जो अंत में तिरंगे के रंग के गुब्बारे छोड़े जाते हैं वो भी एकदम साफ, एकदम चमकदार आसमान में दिखाई दिए। और अब राष्ट्रपति के जाने का वक्त है। राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ है। बड़ी खास ये तस्वीरें मौसम साफ की वजह से भी रही हैं। नीरज जी, मेहरबान है सूर्य देवता, और आज तो रविवार का दिन भी है तो इसीलिए आज दिखाई दिया। और फ्लाई पास बिल्कुल साफ हमें दिखाई दिया, जितने भी फाइटर जेट्स थे वो साफ दिखाई दिए। कर्तव्य पथ पर भी साफ दिखाई दिया। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कभी पिछले कुछ सालों में फॉग दिखाई दिया जिसकी वजह से फ्लाई पास नहीं हो पाया था, लेकिन आज बिल्कुल साफ था। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह से जो भारत की भव्यता है, संस्कृति है और विकास है, उस सब की झलक हमें यहाँ आज कर्तव्य। और विपिन जी, जब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे और वो जो 5000 कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे, मैंने देखा प्रधानमंत्री तो धुन पर थोड़ा अपना हाथ का वो जो रहता है, वो धुन पर जो हाथ वो चलाते हैं वो तो था ही, लेकिन हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रबोवो सुबियांटो, वो भी धुन पर झूम रहे थे। निश्चित बात है। देखिए, वही बात है कि माहौल को देखकर आप बिल्कुल आज जो ये महोत्सव देखने को मिला वो वाकई में ये स्वर्णिम भारत है। और विरासत और विकास का जो आज ये दृश्य देखने को मिला है और सदियों तक ये इसकी एक मिसाल कायम हुई है और ये याद रहेगा। बिल्कुल, बहुत प्रेरणा देता क्षण है, ऐतिहासिक ये क्षण है। और अब यहाँ अपनी बग्गी पर सवार होते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भी अब प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। उनके अंगरक्षक आ गए हैं और घुड़सवारों के साथ में ही अब यहाँ से कार्यक्रम से प्रस्थान होगा। लेकिन इसके बाद में जो तस्वीरें आएंगी आलोक सर, वो वही चिरपरिचित अंदाज में मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, जब हर दिशा में जाकर जो दर्शक आए हुए हैं, जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, उनकी तरफ जाएंगे, उनका अभिवादन करेंगे। देखिए, गणतंत्र की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमेशा जनता के बीच में जाकर के जितने खुश होते हैं, उनका गौरव बढ़ाते हैं, कर्तव्य और अधिकार दोनों की याद दिलाते हैं। और जिस तरह से स्नेह के साथ आप देखिए कि लोग इसीलिए लाइन लगाए हुए बेताबी से सुबह से आकर के बैठे हैं और अंतिम क्षणों का सबको इंतजार रहता है कि प्रधानमंत्री कब उनके सामने हाथ हिलाते हुए जाएंगे। और आज चूंकि मौसम इतना अच्छा है, धूप सूर्य की कृपा है, ये भी एक बताता है कि भारत का सूर्य किस तरह से अब चमक रहा है। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि गौतम बुद्ध
को भी मानते हैं इंडोनेशिया में, और हिंदू फिलोसफी को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। इस दृष्टि से एक बड़ा संदेश आज दुनिया को गया है। और आपको मैं बताऊं कि दुनिया के लोगों की निगाह आज की परेड पर है, क्योंकि हमारी जो शक्ति है इसका और जनता की शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति तो दुनिया में कहीं नहीं है, जो 150 करोड़ की आबादी और उसके साथ ये शक्ति हमारी जो है, और जनता साथ में जुड़ी है, उस आर्मी के साथ भी, और उस प्रधानमंत्री और संसद का भवन पीछे दिखाई दे रहा है। हाँ। राष्ट्रपति भवन, आप ये देखिए कि ये जो पूरा कॉरिडोर है ये दुनिया में नहीं है कहीं भी। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ इसलिए कि मैं सभी राजधानियों में गया हूँ जो दुनिया की बड़ी बड़ी राजधानियां हैं देश की, दुनिया की, और इस दृष्टि से इसीलिए सारी दुनिया आज को देखती है कि अरे ये भारत कहाँ पहुंच रहा है, और आकाश को छू रहा है, और समुद्र की सीमाओं को, जमीन को अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन की तरफ अब राष्ट्रपति प्रस्थान कर चुकी हैं, मुख्य अतिथि भी अब कार्यक्रम से प्रस्थान कर चुके हैं, और अब ये हम कार्यक्रम की कुछ अंतिम तस्वीरें देख रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद अब प्रधानमंत्री को भी हम देखेंगे, और वो जो उनकी पगड़ी का कलर है वो भी इस खिली हुई धूप में और ज्यादा खिला हुआ दिख रहा है। जो लाल रंग और पीला रंग मिक्स जो उन्होंने पगड़ी में पहना हुआ है। विनोद जी, ये जो आज साफ आसमान है, क्योंकि देखिए जब परेड ग्राउंड पर हमारे शूरवीर चलते हैं, हमारे शौर्य का पराक्रम यहाँ पर नजर आता है, शौर्य का प्रदर्शन नजर आता है, तो एक फौजी का दिल बहुत ज्यादा धड़कता है। और ये जो वायु वीर हमें दिखे हैं आसमान में गर्जना करते हुए, आप तो जरूर कनेक्ट महसूस कर पा रहे होंगे। आज का दिन बड़ा खास इस धूप ने भी कर दिया, इस खिले हुए मौसम ने भी कर दिया। बिल्कुल, मैं जमीन से भी परेड देखा। जो वायुसेना जो मुख्यालय है उसके ऊपर खड़े होकर के ये जो फ्लाई पास देख रहे हैं उसकी कंट्रोलिंग का एक हिस्सा रहा, और इस फ्लाई पास में पार्टिसिपेट किया। सो मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट दिन है आज, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिस है, जैसे आप कह रहे थे, इसका प्रैक्टिस हम महीनों भर पहले शुरू कर देते हैं। कौन से फॉर्मेशन में कहाँ रहेगा, और लोकल हमारे जो स्टेशन हैं वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं और उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो जो हम आज जो ग्रैंड फिनाले देखे हैं उसके पीछे हजारों लोग और हजारों घंटे का जो मेहनत है वो रंग लाता है, और इसकी जरूरत क्या है ये समझना जरूरी है। आप देखिए प्रबोवो जो साहब हैं, अपने जो मुख्य अतिथि हैं, ये खुद एक आर्मी जनरल रह चुके हैं, एक स्पेशल फोर्सेस के मुखिया थे और आर्मी जनरल रहे, और ये कुछ चंद बिजनेसमैन से हैं जो प्रेसिडेंट होते हुए भी बहुत अमीर इंसान हैं। 150 मिलियन US डॉलर के जो इनका अपनी खुद का इनका ये है, एक साम्राज्य है, और वो आकर के आज ये हमारा जो बेड़े को देखते हैं, और इनको ये महसूस जरूर होता होगा कि भारत देखिए कहाँ है। और एक अंडरलाइन चीज ये है कि इंडोनेशिया शायद हमसे ब्रह्मोस खरीदने की मुहिम में भी लगा हुआ है। देखिए वो तस्वीर अब सामने आ गई है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें मुझे लगता है फुल स्क्रीन दिखेंगी, ज्यादा अच्छा लगेंगी जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो उनकी सिक्योरिटी है वो साथ में है, और जो प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है, यहाँ सिक्योरिटी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही चलते हुए जहां दर्शक बैठे हैं उनकी तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिर परिचित अंदाज भी है, चाहे वो देश में इस तरह के कार्यक्रम हो, खासतौर से 26 जनवरी हो, या फिर वो विदेशों में जब पहुंचे तब भी, जब भारतीय समुदाय के लोग मौजूद होते हैं और खासतौर से बच्चे होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में जरूर पहुंचते हैं, भले ही वो कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए ही क्यों ना हो। ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि आज जो 26 जनवरी पर परेड हुई है, जिस तरीके से शक्ति हमारी दिखी है, भारत की ताकत दिखी है, उससे हर देशवासी गर्व से अभिभूत है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और ये गर्व पीएम मोदी के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। रचना जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, लीडर लीड्स बाय एन एग्जांपल, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो यहाँ पर अपने आप में कितना इससे प्रेरणा मिलती है और साथ में एक जोश हाई हो जाता है।
और जैसे कि हम बात करते हैं कि आज की अगर गणतंत्र दिवस की बात करें, ये जो भव्य आयोजन हुआ है, एक तरफ हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, साधना को दर्शाया गया और साथ साथ मिलिट्री माइट। और यहाँ पर अगर हम महाकुंभ की बात करें, इसको साथ जोड़ें, महाकुंभ में क्या एक अद्भुत चीज देखने को मिली। एक तरफ हम प्रयागराज की बात करते हैं कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड सरस्वती, तो वहां पर यूक्रेन से भी लोग आए और रूस से भी आए। देखिए यहाँ तो दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जानते हैं कि जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा उत्सुकता है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जोश जो है वो और भी ज्यादा हाई हो जा रहा है। जब कार्यक्रम का समापन हो गया है, जब उठकर जाने का वक्त है, तब भी लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनकी तरफ भी आएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी खासतौर पर बड़े उत्साहित हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद और यहाँ इंतजार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ आएंगे, उनकी तरफ भी वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, जैसा पीएम मोदी करते भी हैं। यहाँ कर्तव्य पथ पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, और यहाँ दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास ध्यान भी है, नजर भी है, और वो जानते हैं कि जो आम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इसी पल का इंतजार अब कार्यक्रम के समापन के बाद में कर रहे हैं। और इसीलिए दोनों तरफ जाते हुए बिल्कुल निराश नहीं करते हुए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। अभिवादन करने का देखिए स्वतंत्रता दिवस पर भी जी आपने कहा ना, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भी वो उसी तरह जनता के बीच जाते हैं। और चाहे देश के किसी हिस्से में, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, कई बार वो जी गलियों में भी वो उसी तरह से निकल करके लोगों के बीच में जाने में उनको सबसे ज्यादा जैसे कह सकते हैं सुखद। और जनता के लिए तो होता ही है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच में सारे सुरक्षा के तंत्र या कई बार खतरे होते हैं उसको उठाते हुए उनके बीच में जाते हैं। आप देखिएगा अभी तो कुंभ मेले में वो स्नान करने के लिए जाने वाले हैं, संगम में भी, तो वो जनता के बीच में लगता है कि वो उन्हीं के हैं। वो कभी ये दिखाते नहीं है कि मैं, जैसे जो तानाशाह होते हैं जो हमारे पड़ोसी देशों में दिखाई देते रहे हैं, उनसे कितने भिन्न हैं। और दूसरे देशों के मुकाबले में भी, लोकतांत्रिक देशों में, भारत में जनता से जुड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। अच्छा आलोक सर, जो आपने अभी महाकुंभ का जिक्र किया, ये जो पगड़ी का रंग है महाकुंभ का इशारा कर रहा है क्या? जी ये कर रहा है। और दूसरा ये एक तरह से आप गीता का जो ज्ञान है उसका भी एक तरह से संकेत देता है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन उसके लिए भी तैयार रहते हैं। रणभूमि में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यही नहीं दक्षिण भारत, तो महाकुंभ भी तो उसी तरह का संगम है। तो मुझे लगता है ये पगड़ी का रंग, वैसे तो आपने देखा होगा हमेशा वो एक से एक सुंदर पगड़ी स्वतंत्रता दिवस पर भी पहनते हैं, गणतंत्र दिवस पर भी पहनते हैं। इस बार उसका कलर और भी ज्यादा, जिसको कह सकते हैं कि संपन्न संस्कृति और संपन्नता की तरफ जो भारत बढ़ रहा है उसका भी प्रतीक है। ये जो कलर है ये बहुत ही एक लोगों को एक संदेश देता है। ये केवल वेशभूषा नहीं है, ये भारत की शक्ति और संस्कृति का प्रतीक भी है, जो युद्ध में भी हमारे पुराने शिवाजी को याद दिलाता है। ये जिस तरह से साफा पहना है उन्होंने, इसको वहां हम साफा कहते हैं, तो राजस्थान का कहिए, पगड़ी कहिए, ये युद्ध भूमि के लिए